Hello everyone, welcome to the video. In today's video, we are going to begin with block first and its very first unit, the process of communication. So understanding the communication, we are going to discuss that what is the process of communication. In the diagram here, you can see कि communication के process में कौन कौन involve होता है. सबसे पहले sender, then is encoding is done, then is message is done, and then we do the channel. There's a channel, requirement of channel, or there's a receiver, and then we do the decoding. So after that we follow the steps. So before we start the things, let us talk about कि आज हम कैसे पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम objectives की बात करेंगे कि what is this unit going to teach you about and what are the things you'll learn through this unit. Then हम communication के बारे में सीखेंगे, उसके process के बारे में, और क्या क्या barriers होते हैं. So barrier means hindrance. ओके, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ऑकरेंस में कम्युनिकेशन की, तो उसको आप एक बैरियर बोलते हैं, हिंड्रेंस. ओके, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शंस की बात करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, एंड वेरियस फॉर्म्स की बात करेंगे. सो नॉट गेटिंग लेट, लेट्स बिगिन. सबसे पहले, व्हाट इज दिस यूनिट गोइंग टू टीच यू अबाउट दिस प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. काफी सारे टाइप्स के कम्युनिकेशन, जैसे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, and vice versa. Then we will learn about the barriers of communication, and finally moving ahead we'll learn about the difference between what is written and what is spoken communication. So, when we talk about communication, communication is a process of exchanging information, ideas, facts, opinions from one person to another, from a sender to receiver, from one institute to another institute. Okay, जो भी हमारे बीच में जब हम अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान को, और जो हम बोलना चाहते हैं वही सामने वाला समझ रहा है, that is effective communication. सो कम्युनिकेशन में एफिशिएंसी होनी चाहिए, हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए अपने मैसेज को जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको उन्हीं सिंपल सादे वर्ड्स में अगर मैं समझा पा रही हूँ, सो दैट इज कम्युनिकेशन. ओके, इट इज मोर देन जस्ट मैसेजिंग और स्वैपिंग द मैसेजेस. ओके, so when we are talking about communication, तो देखो right now this is also communication. Okay, communication क्या होता है? Exchange of ideas, opinions, facts from one person to another person. So I am the sender of the communication. Okay, I am the sender in the communication process, and you are watching the video, you're watching the class, so you all are receivers. Okay, and this process through which we are communicating is a channel. Now it involves use of all the senses. Okay, and communication का मतलब सिर्फ बोल के अपनी बात को समझाना ही नहीं होता. If you want to say something and I agree, and if I say thumbs up, that is also communication. Okay, so इसमें आप kinesis, body language की बात करते हैं, haptics की बात करते हैं, face to face communication, verbal, non verbal, written, it covers all of the forms. Okay, so जब हम बात करते हैं process of communication की, so सबसे पहले there's a sender. Sender is the person who sends the message. Okay, then there's a message. फिर उस मैसेज को जब आप बनाते हो तो आप उसे एनकोड करते हो. एनकोड मतलब एनक्रिप्शन. उस मैसेज को, उस आइडिया को जो आपके दिमाग में और जब आपको रिसीवर तक पहुंचाना, उसको एनक्रिप्ट करना मैसेजेस में, सिंबल्स में. ओके, एंड देन आपका टेक्स्ट बन जाता है. आइदर इट वुड बी स्पोकन, इट वुड बी रिटन. देन इज डीकोडिंग. डीकोडिंग मतलब उसको डीकोड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना. ओके, एंड देन द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज. So now look at the figure given above and try to answer the following questions. Okay, so आप बताओ कितने जो person है, at least how many persons do you need for communication to take place? You can pause the video here and answer the following questions, and once you pause the video and do all the questions, we are going to move ahead with the answers. Okay, so pause the video right here, take 2 minutes, not more than that, and then we are going to discuss the answer of these questions. Okay, so at least how many persons, let's discuss. At least how many persons do you need for a communication to take place? So at least 2 persons. Okay,
टू पर्सन्स जब आप इन्वॉल्व करते हो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और जब अपना कम्युनिकेशन मैं खुद से ही कर रही हूँ, आई एम ऑन द ओनली पर्सन आई एम कम्युनिकेटिंग विद, उसको इंट्रापर्सनल बोलते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, कैन टू पीपल कम्युनिकेट इफ दे डू नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज? यस, दे कैन कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज. ओके, if you answer to question number 2, if your answer is yes, then explain how you can. Okay, so इसका आंसर क्या है? लिमिटेड कम्युनिकेशन, दैट इज बॉडी जेस्चर्स के थ्रू. ओके, so a saint sitting with his eyes closed says he is communicating with God. Okay, एक साधु है, अपनी आंखें बंद करके बैठा है, and he is trying to say that वो God से communicate कर रहा है. Do you think it is an example of communication? बताओ कैसे? तो वही है कि yes, कम्युनिकेशन अपने आप से भी हो सकता है, लेकिन जब वो आंखें बंद करके गॉड से, गॉड इज ओमनी पोटेंट. ओके, हम इसको सोशल कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज, अ पर्सन वाज लॉस्ट इन हिज थॉट विद हिज आईज क्लोज्ड. When asked, he said that he was communicating with self. Would you term it as communication? Now you have to discuss. अब इसका answer is same as 4. Okay, we'll call it a social communication. Now let us talk about the elements of communication. Okay, communication के elements क्या क्या होते हैं? सबसे पहला तो आपको element word का मतलब पता होना चाहिए. So element क्या होता है? What is element? तत्व. Okay, so when we talk about elements, we are talking about the parts. Okay, so सबसे पहले it involves two person. Communication process involves two persons. Okay, अब ये दो person कौन है? एक होगा addresser और एक होगा addressee, sender and receiver. फिर आपका टॉपिक आएगा. ओके, जैसे कि जो आपका कंटेंट है आपके मैसेज का, देन इज योर चैनल. चैनल मीन्स आप हाउ, व्हाट इज द मीडियम यू आर कम्युनिकेटिंग. ठीक है, you are communicating through a video, you are communicating through a letter, you are communicating either through telephone or email. Okay, फिर आता है आपका code. Okay, language of the message. What kind of language are you encrypting in your code? Okay, then is your message. जो grammar और lexical choice होती है आपकी, you can make your message grammatical. Okay, you can make your message lexical. आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्ड्स यूज करोगे. ओके, एंड द सेटिंग, जो सोशल और फिजिकल सेटिंग होती है. क्लियर? Now let us talk about the activity. What you have to do here is you have to write a paragraph explaining the process of communication. So हमने communication की सबसे पहले title page पे बात की थी. Okay, here we talked about, here also we talked about, and we also talked about the process of communication. यहाँ पे sender is the person who sends the message. Encoding means the encryption of message into symbols. Okay, into the simplest language you are writing. Then is the message जो आपका encryption के through बन जाता है. Channel is the medium. Right now my channel is video. Okay, we are talking through video. Okay, video lecture. And then the receiver receives the message plus decodes it. Decode होता है understand करना, और जो noise होती है उसका मतलब होता है कोई भी hindrance या barrier. Okay, अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट इशू हो सकता है, या फिर कोई वैसा जनरल इशू हो सकता है. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस you have to write about the process of communication. Pause the video right here and do this question. Then you will repause the video, play the video, replay, and then we will go ahead with the next activity. This is a sample answer if you want to answer it. Okay, so let's read one of the answer, sample answer. On the left side is the addresser. Left side पे जो है आपके addresser होंगे. He or she can choose to write his or her message or equally well speak it. Okay, so we can use the more general word encoder for him. Okay, क्योंकि वो encoder है, वो encode कर रहा है आपके message को. The encoder has a message. It may be news, an idea, or a feeling. Okay, he wants to convey this message to somebody. Okay, so वो जो यहाँ पे convey है, वो किसी को convey करना है. अब somebody is कौन? The receiver. To make this possible, he or she must first put it into words. अब जब वो सिंबल्स को, आइडिया को अरेंज कर रहे हैं वर्ड्स में, इसको बोलते हैं हम encoding. Okay, that is, it means that is she or he must encode it. Once it is encoded, encoded मतलब encryption on symbols का, जो मेरे दिमाग में आइडिया है उसको मैसेज बनाने का. Okay, now it is available outside his or her mind as a text. अब अगर आपको किसी को कुछ कहना है, okay, आपको याद आ गया, अब आप उसको मैसेज में लिखेंगे, और जब वो आप मैसेज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आइडिया को, अपने प्रोसेस को, जो भी आपके दिमाग में ओपिनियन है, तो द कन्वर्टिंग और द एनक्रिप्टिंग ऑफ दैट आइडिया इनटू दैट मैसेज इज नोन एज एनकोडिंग. वंस इट इज एनकोडेड, तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में अवेलेबल होगा या फिर स्पीच के फॉर्म में अवेलेबल होगा. अब वो टेक्स्ट एक्सेसिबल होगा दूसरे इंसान के लिए जो उसे सुनता है, रीड करता है, हियर करता है, वो उसे
डिकोड करेगा, और कौन है वो यहाँ पे, वो इज द रिसीवर. ओके, ही इज द रिसीवर और शी इज द रिसीवर. दे डिकोडेड. डिकोड करना मतलब अंडरस्टैंडिंग the intent of the message, जो वो convey करना चाहते हैं. Okay, once it is encode decoded, the message enters the mind of the decoder and the communication takes place. और अगर वो effective communication है तो वो receiver feedback देगा. I hope that's clear. You can write your own answer. Now we are talking about the role of decoder. Decoder कौन होता है? Receiver. Okay, so इनका जो है काफी active role होता है. Decoder का सबसे पहला responsibilities जो message आया है उसको उसी intent से अपनी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना जिस इंटेंट से सेंडर ने सेंड किया है. ओके, अपना बेस्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर यूज करके, अपने ओपिनियंस यूज करके. अब ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे. जैसा सेंडर और रिसीवर का रिलेशनशिप होगा, जैसा उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसी उनके अंदर वैलिडिटी होगी एक दूसरे को समझने की. सो it all depends on the receiver and sender's relationship that they share. Okay, and then is decoder is the receiver and it makes he or she makes the meaning of the message. Okay, आपने मुझे कुछ मैसेज भेजा है, अब उसको समझना, that understanding, okay, is the responsibility of the decoder and decoder is the receiver. Okay, it depends on the knowledge of the subject. अगर आपने कुछ कहा है और आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए. डिपेंड्स ऑन आप और आपका सेंडर कैसा रिलेशन शेयर करते हो, आप कैसे कल्चरल कंटेक्स्ट से हो. ओके, सो in this diagram it is very clearly mentioned the relationship between the encoder and the decoder. Okay, encoder encodes the message, decoder understands it, interprets it using full focus. Now time for activity again, because practice makes the man perfect. Now what you have to do is, can you think of someone or some of the functions of the language? One can be to inform someone or one can be to warn them. Okay, think of some more functions and compare your list with that draws up by others at your study center. So you have to pause the video and do the question. I am sharing a sample of the same. Okay, okay, we don't have a sample. You have to do this question on your own because it depends on your writing skills. Now moving ahead, let's discuss about the macro functions of communication. Communication के क्या क्या फंक्शन होते हैं. ओके, सबसे पहला इज द पोएटिक फंक्शन. ओके, जैसे कि पर्टिकुलर फॉर्म या फिर उसका एसेंस होता है. ओके, जब हम इमोटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करना इनर स्टेट को, जो आपको अंदर से फील हो रहा है वही. जैसे कि फॉर एग्जांपल ओ नो, तो ये इमोटिव फंक्शन है क्योंकि ये आपकी कम्युनिकेशन में आपका इमोशन दिखा रहा है. ओके, देन इज द डायरेक्टिव फंक्शन. इट सीक्स टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स. ओके, फैटिक फंक्शन का मतलब है ओपनिंग द चैनल और चेकिंग इट whether it is working. Okay, for example, hello, is it Thomas? Can you hear me? We have fatigue function, channel को check करना. Then is contextual function, creating a particular context जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं. Then is metalinguistic function, focusing on the code. Okay, for example, use of will, shall. Okay, or you know more of that language. Now रेफरेंशियल फंक्शन का मतलब है कैरी करना किसी इंफॉर्मेशन को. तो ये सब जो है फंक्शंस हैं कम्युनिकेशन के. नाउ इज द टाइम फॉर योर एक्टिविटी अगेन. आज तो आप मास्टर्स ही बन जाएंगे बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए. Which of these functions are often performed in workplace situations? Okay, आपको examples देने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए. आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा जो है फंक्शन वो workplace situations पे is associated? Okay, is you know इन डेप्थ वहां पे आप इसको एसोसिएट कर सकते हो. इमोटिव फंक्शन, पोएटिक फंक्शन, रेफरेंशियल फंक्शन, मेटालिंग्विस्टिक, फैटिक, contextual या फिर डायरेक्टिव. अब this is very easy to do, so you have to answer this question. Pause the video and do it. Now we are going to talk about barriers of communication. Okay, communication आपको समझ आ गया. communication का मतलब होता है अपना आइडिया, अपना मैसेज, अपने फैक्ट्स, अपनी इंफॉर्मेशन हमसे दूसरे इंसान तक पहुंचाना, एक्सचेंज करना ओपिनियंस को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर एंड सो ऑन. ओके, अब बैरियर वर्ड का मतलब होता है हिंड्रेंस, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आना आपके कम्युनिकेशन में. वो कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है. सबसे पहले इस वोकैबुलरी की प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, अगर आप बहुत टेक्निकली जार्गन वर्ड यूज करते हो, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कूल टू योर फ्रेंड, यू आर सेइंग आई एम फीलिंग ट्यूबुलर. सो आपका फ्रेंड चकरा जाएगा कि ये क्या बोल रहा है.
ओके। और मे बी वो प्रिटेंड करे कि हाँ हाँ उसे समझ आ गया, और इसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए कि अच्छा हाँ, मुझे लगा ये वर्ड था, तो इसलिए यू शुड ऑलवेज यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वोकैबुलरी। ओके, देयर इज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो आप बोलना चाह रहे हो। आपका अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो, आपको जो बात बतानी है वही उसमें ही आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो फिर इट विल नॉट वर्क। कल्चर स्पेसिफिक भी इट क्रिएट्स अ बैरियर। फॉर एग्जाम्पल देखो, जापान के कल्चर में there is the thing, if they are nodding head that means an agreement, okay, but America mein if they are nodding head that means if they are nodding head in America, sorry I repeat myself, अगर अमेरिका में people are nodding their head तो that means कि कोई बात का के लिए agree कर देना, yes कर देना। और जापान में इट इज लाइक कि अगर इफ यू आर नॉडिंग द हेड लाइक दिस, तो ये दिस इज द साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि यू आर लिसनिंग। अब मीटिंग चल रही थी जापान और अमेरिका के बीच में, वहां पर होना था एक कॉन्ट्रैक्ट साइन, और वहां पे जापान के कल्चर में बिकॉज इसका मतलब रिस्पेक्ट था, तो उन्होंने मीटिंग में ऐसे ऐसे कर दिया। अब अमेरिकन पीपल कॉम्प्रिहेंडेड इट, अंडरस्टूड इट कि इन्होंने तो हाँ कर दिया भाई बिजनेस के लिए, एंड देन फाइनली हो गई लड़ाई। सो दैट क्रिएट्स अ बैरियर। ओके, सो कल्चर स्पेसिफिक। नाउ बैकग्राउंड नॉलेज जो है आपकी जो डिपेंड करती है, अगर वो बैकग्राउंड नॉलेज आप हर चीज पे अप्लाई करने लगोगे तो मैसेज मिस इंटरप्रेट होगा। प्रोनाउंसिएशन वर्ड का, ओके, आप जो वर्ड है उनके एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस लेंगे, प्रॉपर इंटोनेशन लेंगे, हाई पिच लो पिच रखेंगे। अफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, कोड होता है, ओके। एक होता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम, एक होता है लैंग्वेज को समझ के टेक्निकली प्रॉब्लम, एम्बिगुअस स्टेटमेंट, ओके, सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। एंड देन दे आर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन में अगर अथॉरिटी नहीं है वन से डाउनवर्ड जाने की, तो फिर दैट विल क्रिएट अ बैरियर। और बहुत सारे और भी बैरियर्स होते हैं। बैरियर मीन्स ऑकरेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ यू हैव टू टेल हाउ the barriers to communication can be removed. Okay, हमने इन barriers की बात की, तो आपको बताना है कि कैसे ये barriers जो है ये remove किए जा सकते हैं। Use your logics and then answer the following question. Now we are going to talk about types of communication. Okay, generally जो है communication four main mediums में है, but in today's worldwide, socialized world, काफी सारे टाइप्स आ गए हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज स्पोकन थ्रू वर्ड्स, स्पोकन थ्रू माउथ, ओके, तो दैट इज वर्बल। जैसे कि राइट नाउ वी आर डूइंग, आई एम डूइंग वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वर्ड्स का ना यूज करके, बॉडी लैंग्वेज का, आई कॉन्टैक्ट का, जेस्चर्स का, फेस एक्सप्रेशंस का, आई कॉन्टैक्ट का यूज करना, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन refers to any form of communication that is not transmitted through spoken word. It includes body language, facial expression, okay, and eye contact, etc. Then is written communication, any form of communication that is written in itself, okay, use of words, sentences, paragraphs in order to communicate. Or visual communication or the transfer of information from a person to another in a format that can be read or viewed. For example, you can see my PPT, so this is visual communication as well. I hope that's clear. Now, when we talk about formal and informal communication, the slides are a little messy, but let's work it out. Okay, deliberately structured होनी चाहिए आपकी स्लाइड। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है? देखो, फॉर्मल वो होता है जहाँ पे आप फॉर्म में रहते हो, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, वर्क प्लेसेस। इनफॉर्मल होता है व्हेन यू आर नॉट इन एनी फॉर्म, जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हो, फ्रेंड्स के साथ होते हो, तो आपको किसी फॉर्म में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो दैट इज वाई इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत वेल प्लान रखते हो, ओके, प्रिस्क्राइब करते हो क्या बोलना चाहते हो, बहुत रिजिड रहते हो, जो बोल दिया वो बोल दिया, ओके। आप एक ऑफिशियल चैनल पे आप कम्युनिकेट करते हो, ऐसे नहीं और भाई क्या हाल है, नहीं, यू हैव टू यूज अ प्रॉपर मीडियम, ओके। एंड देन यू हैव टू अचीव योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये टाइम टेकिंग होता है, एक्यूरेट होता है, लीगल होता है, ऑथेंटिक होता है। इट कैन बी बोथ ओरल एज वेल एज रिटन, एंड इट कैन बी ट्रेस। तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हो, आप तो बहुत अनस्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियसली बोल देते हो जो भी आपके मुंह में आ रहा होता है, ओके। देन इज यू स्पीक अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड होता है। आप कोई भी अपने फ्रेंड से, फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू से
ओके, जैसे कि ग्रेप वाइन में होता है, जब किसी को किसी की चुगली करनी होती है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके में करते हैं। लेकिन अगर वही बात बॉस को बतानी है तो फिर दैट वुड बी अ स्ट्रक्चर्ड वन, तो वो फॉर्मल हो जाएगा। ओके, ये अनप्लान्ड होता है, अनऑथर्ड होता है, अनसिस्टमैटिक होता है। ओके, इस पे कोई चैनल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिपेंड्स, आप फोन पे बात करना चाहते हो, आप व्हाट्सएप पे चैट करके बात करना चाहते हो, ये फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है, अनऑफिशियल है ये। ओके, और ये सेटिस्फाई करने के लिए पर्सनल नीड्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसके लिए होता है? अपने गोल सेटिस्फाई करने के लिए, पर्सनल नीड्स को। ओके, इट इज फास्ट। ओके, इट इज ऑफन डिस्टोर्टेड, र्यूमर्स होते हैं इसमें, काफी सारी गॉसिप्स होते हैं, और यूजुअली ओरल होता है। आजकल व्हाट्सएप पे भी हो रहा है। ओके, एंड इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड बिकॉज इसमें आप इतनी ज्यादा बात कर लेते हो। नाउ, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही वी हैव फर्दर टाइप्स। ओके, फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है मैसेज फ्लो डाउनवर्ड्स थ्रू द चेन ऑफ कमांड, दैट इज फ्रॉम मैनेजर टू एम्प्लॉयर, boss to employer, clear? Then is upward. Okay, message flow from the chain of command, नीचे से employer से boss के पास जा रहा है मैसेज। और horizontal मतलब same people, एक एक गूगल में जो भी peers हैं, colleagues हैं, वो आपस में एक ही रो के हैं, वो सब बात कर रहे हैं। Okay, employers are the same level. Now let's talk about the activity. Okay, you have to tell which mode of communication would you adopt in the following cases. Okay, मैसेज बहुत अर्जेंट है, तो आप कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन अडेप्ट करेंगे? बताइए जरा. What do you think? Which mode of communication you'll adapt if the message is very urgent? तो इफ योर मैसेज इज सो अर्जेंट कि वो रुक ही नहीं सकता है, तो आप फेस टू फेस कर सकते हो या फिर टेलीफोन कर सकते हो, राइट? द मैसेज इज इम्पोर्टेंट एंड लेंदी रिटन कम्युनिकेशन, बिकॉज हम फोन पे ये सब कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा लंबी बात करनी होती है तो हम लिख के बताते हैं। ओके, और लेंदी भी होता है, ईमेल अटैच कर देते हैं, फॉर एग्जांपल फैक्स कर देते हैं। तो द मैसेज सेंड शुड बी अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स। तो जब हम बोलते हैं तो उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता until unless the person सिटिंग देयर इज रिकॉर्डिंग। ओके, हर कोई रिकॉर्ड नहीं करता है, तो इसके लिए आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू एम्प्लॉय इज टू बी सेंड टू ऑल एम्प्लॉयज इन डिफरेंट ब्रांचेस। इसके लिए भी आप ईमेल या फिर रिटन या फिर मेमोज यूज कर सकते हो। यू हैव टू कंसल्ट योर बॉस हु इज आउट ऑफ टाउन अर्जेंटली एंड टेक अ क्विक डिसीजन। दिस इज टेलीफोनिक। ओके, now let's move ahead, talk about the other things. Written versus oral communication. Written और oral communication में क्या क्या difference होता है? We are going to learn it through reading task. Okay, when we speak of language as a tool for communication, we mean both spoken and written forms of communication. बहुत common sense की बात है, जब हम communication की बात करेंगे तो हम written और spoken के through ही communicate करते हैं. Okay, then both of these can be used for communication. While they perform the same functions, their form and manner of use differ in many respects. कैसे अलग होती है वो, let's learn it. For example, one makes use of sounds, other of symbols. The speaker has available to him, her, the full range of voice quality effects as well as facial expression, postures, gestural systems, but the paralingual features are denied to the writer. Okay, देखो जो राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन होता है उसमें राइटर को अपने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखाने होते, अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाने होते। मैं ऐसे बैठ के लिख रहा हूँ, मैं सीधा बैठा हूँ तब लिख रहा हूँ, मैं अपने डेस्क पे लीन हूँ तब लिख रहा हूँ, नो। बट व्हेन वी आर स्पीकिंग we have to show our facial expressions, ये सब आपको क्लियरली दिखाई देता है, आपकी बॉडी मूवमेंट दिखाई देती है और सब कुछ, ठीक है। लेकिन रिटन फॉर्म में ये नहीं होता। The writer, on the other hand, has typographical variety at his or her disposal. Okay, राइटर को ये सब चीजें नहीं एक्सप्लेन करनी होती, नहीं दिखानी होती। ओके, द स्पीकर इज फेस टू फेस विद द हियरर। ओके, जो आपका लिसनर है, जो सुनने वाला है, आप उसके साथ फेस टू फेस होते हो, सामने आमने सामने। ओके, while the writer writes for an absent reader who may be also far away in space and time. Okay, अब जो एक बार लिख दिया, जो सामने बोल रहे हो वो उसी टाइम बोल रहे हो, उसी टाइम सुन रहे हो। अब जैसे ये वीडियो है तो ये कोई किस टाइम सुन रहा होगा, कोई किस टाइम सुन रहा होगा। ओके, बट जो जैसे सिमिलर इज रिटन कम्युनिकेशन की, अगर मैंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया तो दैट डिपेंड्स कि आपका रीडर किस टाइम पे वो मैसेज पढ़ रहा होगा। जरूरी नहीं है जिस हिसाब से आपने वो मैसेज जिस टाइम को कंसीडर करते हुए बोला उसी टाइम।
ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। These different features have their own advantage and disadvantage. कैसे? In oral communication, the speaker being face to face with the hearer can monitor and match the reaction of the hearer. अब अगर मैं आपके आमने सामने होती तो मुझे आपके फेस टू फेस एक्सप्रेशन दिखाई देते, ओके, बट अभी ऐसा नहीं है। एट द सेम टाइम ही और शी कैन साइमल्टेनियसली प्लान हिज और हर नेक्स्ट अटरेंस एंड फिटेड ओवरऑल पैटर्न ऑफ व्हाट ही और शी वांट्स टू से। लेकिन ऐसा नहीं होता रिटर्न में। ही और शी मस्ट कीप ऑन टॉकिंग ड्यूरिंग द पीरियड अलॉटेड टू हिम और हर। शी मस्ट डिसाइड व्हेन टू टेक हिज टर्न और हर टर्न, ओके, हाउ टू इंटरप्ट, हाउ टू इंटरलोकेट, ओके, हाउ टू हैंड ओवर द टर्न, ओके। आपको सामने सामने बात करते हुए पता रहता है कि अब मुझे रुकना है, अब मुझे बोलना है, बिकॉज आप सामने सामने होते हो, ओके। लेकिन रिटर्न वाले में राइटर के पास अथॉरिटी होती है, राइटर ही बोलता जाता है, ओके, रीडर कुछ नहीं बोलता। वो अगर बोलना भी होता है तो अपने आप बोलता रहता है, फिर उसे रीड कर लेता है। लेकिन राइटर के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है बोलने की। हालांकि स्पोकन में जो है आपके पास जो स्पीकर है उसके पास अथॉरिटी है रुकने की, पोज करने की, सामने वाले को रोकने की कि रुक जाओ, नहीं। लेकिन रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। ओरल कम्युनिकेशन इज क्विकर, आमने सामने है, फास्ट होगा, मोर इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव है, ओके, एंड मोर इफेक्टिव देन द रिटन कम्युनिकेशन। क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में एक ही ओपिनियन चलता रहता है, मैंने कुछ लिख दिया, जैसे ये हम रीड कर रहे हैं, ये रिटन कम्युनिकेशन है, ओके। और जो मैं आपसे कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो लेस और मोर फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अभी वी कैन नॉट से, बट जैसे ये लिखा हुआ है तो ये किस टाइम और स्पेस पे लिखा हुआ है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड, राइट। तो हम उसको सिर्फ रीड कर रहे हैं, और यहाँ पे राइटर जो है वो अथॉरिटी है, ओके, उसके पास अथॉरिटी है टोन चेंज करने की, मैसेज चेंज करने की, जो भी इंफॉर्मेशन स्किप करने की, एड ऑन करने की, ओके, पास ऑन करने की। सो डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लियर ऑन स्पॉट। अगर हम आमने सामने, अगर ये लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड क्लास, ओके, तो आप वापस से नहीं बोल सकते हैं मुझे इसी मूवमेंट पे रोक के, बट अगर ये लाइव क्लास होती तो आप सामने स्पॉन्टेनियसली यू कैन हैव सेड, ओके मैम वेट, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन, राइट। सो डाउट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वहीं पे क्लियर हो जाती है। नाउ देयर आर वेरिएशंस स्पोकन लैंग्वेज में, ओके, कैसे वो डिलीवर हो रही है। दीज कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ जियोग्राफिकल और सोशल कल्चरल डिफरेंसेस, दे आर डायलेक्टिकल डिफरेंसेस, कोई कैसे डायलेक्ट बोलता है, कोई कैसे डायलेक्ट बोलता है, एक्सेंट का डिफरेंस होता है, बॉडी लैंग्वेज का बहुत डिफरेंस होता है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होती है, ओके। स्पीच इज लेस ऑर्गेनाइज देन रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज में आपको बहुत ऑर्गेनाइज करके फॉर्मल तरीके से लिखना होता है, लेकिन आप जो है स्पोकन में ऐसा नहीं करते हैं, रैंडमली बोल देते हैं स्पोकन में आप, ओके। दीज फीचर्स में बी इजिली, it contains many incomplete sentences, okay, often it contains simple sequence of phrases, आप कैसे उसे arrange करेंगे, layout करेंगे। These features may easily create misunderstandings। इसकी वजह से रिटन कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर स्पोकन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो हैंड टू हैंड क्लियर हो जाती है, ओके। ओरल कम्युनिकेशन इज लेस रिलायबल, रिलायबल नहीं है, उसने ऐसा बोला था, प्रूफ क्या है आपके पास। अगर आपने बोला राइटर ने ऐसा बोला था तो वो तो आपके पास प्रूफ है, बट आपके फ्रेंड ने ऐसा बोला, आपके पास ऐसा कौन सा प्रूफ है। आपके फ्रेंड ने मना कर दिया तो कि नहीं, आई हैवंट सेड सच थिंग, तो फिर वहां पे आपकी रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल है। बट राइटिंग के पार्ट में आप रिलायबल हो क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन है, ओके। नाउ ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस। हम जो बहुत लंबा मैसेज देना है, किसी को बुक लिखनी है, स्पोकन में तो नहीं बता सकता, लिख के ही बताता है ना। सो दैट इज वाई लेंथी कम्युनिकेशन के लिए स्पोकन इज नॉट appropriate, suitable, you can say, okay। Now let us talk about the other thing, okay। He or she may overlook, reflect and edit what or he or she has already written with no fear, ठीक है। इंटरलोकेटर होता है। रिटन कम्युनिकेशन जो है वो इंश्योर करता है इंफॉर्मेशन एक यूनिफॉर्म सी मैनर में, ओके। Now, since it is put back in black and white, it provides a permanent record for the future reference। वही कि आपके पास written communication में जो है future reference के लिए record होता है, oral में नहीं होता। written communication जो है complete, precise और unambiguous है। जो message है वो repeat हो रहा है regular interval पे। lengthy messages होते हैं वो widely scattered readers को भेजे जाते हैं, ठीक है। written communication जो है time consuming है, expensive है because लिखने में एफर्ट्स मांगता है, ओके। एंड रिटर्न रिजिड, वो ऐसा ही है, जो ये इन्फॉर्मेशन है स्टैटिक है, चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो आप चेंज करके मॉडिफाई करके बोल सकते हो, ओके। नाउ एट वर्क प्लेस, फेस टू फेस एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन आर जनरली कंफर्म्ड
in writing by post or email, particularly when the communication is with the world outside. Okay, why do you think it is necessary to do so? क्यों जरूरी है ऐसा? Discuss with your friends or mates at the study center, or compare the advantage disadvantage of telephonic mode of communication over face to face interaction. अब आपको सोचना है टेलीफोन और फेस टू फेस इंटरेक्शन में क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं. ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. चेक योर प्रोग्रेस 7. ओके, कि आपको मैसेज अर्जेंट है तो आप कैसे करेंगे, और अर्जेंट नहीं है तो आप कैसे करेंगे. अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, you are the marketing manager of a firm. You want to hire sales supervisor. Which form of communication would you like to communicate, and would your requirement to the manager, ठीक है, would you prefer to talk to him personally, phone पे, या फिर कैसे writing करके? आप it depends on person to person कि आप कैसे लिखोगे. Okay, next thing is different type of face to face interaction. अब इसमें भी gaps हैं. कैसे? Brown and Yule use two terms to describe the major function of language. Okay, the function of language where the transfer of information is involved, it is called transactional. जहाँ पे information आप exchange करोगे उसको transactional बोलते हैं. And the function involved in expressing social relation, personal attitude is called interactional. Okay, जहाँ पे आप interaction कर रहे हो उसको interactional बोलते हैं, जहाँ पे आप socialize कर रहे हो उसको interactional बोलते हैं, जहाँ पे information देनी है उसे transactional बोलते हैं. Clear? For example, A speaks, there's no message for you. Okay, आपने एक information दी कि आपके लिए अभी आज कोई message नहीं है. B ने बोला okay, transactional. ठीक है, how are you? I'm fine, thank you. That is interactional क्योंकि आप socialize कर रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो. So in the world of business, one has to make sure use of language for performing both these function. Okay, transactional भी, interactional भी, हमें दोनों को blend करके use करना होता है. In business transaction, different situation may arise. One has to use language for different face-to-face interaction. पहला is conversation for establishing social contract, performing various functions. जैसे कि आप introduce करोगे अपने आप को, दूसरों को inquiries बनाओगे, पूछोगे, इंफॉर्मेशन को लोगे या दोगे, पास करोगे. ओके, इंस्ट्रक्शंस देनी है कहीं पे आपको, जो है कन्वर्सेशन को रिपोर्ट करना है, आपको कंपनी की प्रोफाइल बतानी है, दूसरे इंसान को डिस्क्राइब करना है, पर्सन प्लेस को डिस्क्राइब करना है. यू हैव टू डेवलप रिलेशनशिप, यू हैव टू गेट पीपल टू डू थिंग्स, यू आर ऑफरिंग हेल्प, सीकिंग हेल्प, अपोलोजाइजिंग, किसी को परसुएड कर रहे हो, इलैबोरेट कर रहे हो, एक पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो किसी सिचुएशन को, दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो बिजनेस डील में, यू आर आस्किंग एंड सीकिंग फॉर एडवाइस, सो यू आर गोइंग टू यूज ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन. अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो डिस्कशंस में, ओके, यू आर टेकिंग part in conducting meeting and interviews. Okay, you are lecturing, you are demonstrating company's product, you are talking about where you work, describing simple and everyday operations, describing work and business operation, describe कर रहे हो working condition को आपके ऑफिस की, consulting और reporting कर रहे हो superiors की. Okay, आप advice लेना चाहते हो या देना चाहते हो, आप अपनी problems के बारे में बात करते हो, तो इनमें जो है most of these encounters will be transactional. हालांकि इनमें से कुछ कुछ जिसमें आप सोशलाइज कर रहे हो वो इंटरेक्शनल है. अभी जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ट्रांजैक्शनल है, बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन है. ओके, कन्वर्सेशन क्या होती है? ओके, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सोशल इंटरेक्शन एट द वर्क प्लेस. ओके, मीट करना, लोगों से मिलना, उनसे बात करना, डेवलप करना कम्युनिकेशन को. ओके, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन कैन यू रिकॉल डिराइव सम रूल्स ऑफ फेस टू फेस कन्वर्सेशन? अब सोचो, डू यू थिंक दीज रूल्स आर फॉर कन्वर्सेशन एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड? ओके, नेटिव स्पीकर्स जो है नेचुरली अपनी लैंग्वेज को लर्न करते हैं. ओके, फॉलो करते हैं रूल्स. नेटिव्स को ज्यादा मतलब हाइपोथेटिकली नहीं जाना पड़ता जैसे हमें जाना पड़ता है इंग्लिश को सीखने के लिए. जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर है उनके लिए नहीं. हाउ दिस हैपेंस यू हैव टू डिस्कस. ओके, ह्यूमन बीइंग्स जो है अपना टाइम देखो किसके साथ एंगेज करते हैं? कन्वर्सेशन में. जब हम बचपन में होते हैं तो हम सीखते हैं कि कोई मम्मी बोलने को बोलता है तो हम वी रिपीट द फ्रेज मम्मी. ओके, सो वी लर्न इट थ्रू इमिटेशन. ओके, सो दैट इज हाउ द कन्वर्सेशन ऑफ नेटिव स्पीकर्स इज फॉर्म्ड अप. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और ये सब की हम बात कर चुके हैं. ओके, सो एज रिचर्ड एंड स्किमिडिस पॉइंट आउट, द टर्म कन्वर्सेशन इज यूज्ड समewhat ambiguous in current literature. कन्वर्सेशन थोड़ी सी ambiguous है. कुछ टाइम पे इसको रेफर करते हैं स्पोकन एनकाउंटर और ट्रांजैक्शन, और सम टाइम इसको रेस्ट्रिक्टली क्या बोलते हैं? Before we describe the rules of conversation, let us be clear about the term conversation. Okay, so talking हम बात कर रहे थे कि इसको और क्या बोलते हैं? Talking occurrence when a small number of participants come together and settle into what they perceive to be a few moments cut off from. Okay,
इंस्ट्रूमेंटल टास्क, पीरियड ऑफ आइडलिंग फेल टू बी एंड एंड इन इटसेल्फ, ओके, जो जिस टाइम आपकी जरूरत है उस टाइम पे चीजों को मेंशन आउट करना, ओके, एवरीवन अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ समवन whose overall evaluation of the subject matter at hand, please read it out, okay. All talk, it is pointed out, is rooted in its surrounding, but conversation in this more restricted sense is not very firmly rooted in the world as other kinds of utterances, ठीक है. The activities which are directly governed by norms for the use of speech are termed speech events. ऐसी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली गवर्न की गई हैं नॉर्म्स पे, किसकी, फॉर द यूज ऑफ स्पीच, उन्हें स्पीच इवेंट्स बोलते हैं. स्पीच इवेंट्स जो है कन्वर्सेशन कैन बी कॉन्ट्रास्टेड, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट है वो, ठीक है, विद अदर टाइप्स ऑफ स्पीच सच एज लेक्चर्स, कन्वर्सेशन, इंटरव्यूज, डिबेट्स, इनसे आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो कन्वर्सेशन को, ओके. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ conversation. Cooperative politeness and politeness, cooperative and politeness principle की बात करते हैं. कन्वर्सेशन जो है क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है. जब लोग कन्वर्सेशन में पार्ट लेते हैं, ओके, तो क्या लेके आते हैं आगे, दे ब्रिंग इन द कन्वर्सेशनल प्रोसेस, अजम्पशन, अपनी एक्सपेक्टेशंस, ओके, how conversation develops and sort of contribution they are expected from each other to make it frame, okay. When people engage in conversation तो वो common principle share करते हैं एक दूसरे से, okay, ताकि वो लीड अप कर सकें एक दूसरे की अटरेंस, एक दूसरे के मैसेजेस को समझ सकें, ओके, और अपने जो अटरेंसेस है वो कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर मेरा कोई ओपिनियन है तो वो मैं अपनी कन्वर्सेशन में ओपिनिएट करती हूँ और आप उसको समझते हैं, ओके. So one of the assumptions we make when we take part is that if I ask you a question, whether you say will somehow be interpreted as consulting an answer to my question. So you have to consider these following example. Okay, which generator did you buy? It is Honda. Now let us consider the following. Which generator did you buy? You could have killed it. Okay, आपने अब यहाँ पे change ही कर दिया message को. Now let's move ahead. Okay. अब बी के केस में जो है वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, ओके, क्योंकि अनइंटरप्टेबल रह गई वो इन्फॉर्मेशन, वो समझ नहीं आया तो इसलिए कुछ भी चेंज करके बोल दिया बी वाले पार्ट में, ओके. अब फिलोसफर ग्राइस जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है 4 मैक्सिम और प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर विद स्पीकर ऑब्जर्व इन कन्वर्सेशन. अब ये है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, ओके. मेक श्योर कि आप उतना बोले जितना रिक्वायर है, उतने क्वांटिटी में बोले. कुछ लोग बोलते ही जाते हैं, सो दैट मेक्स नो सेंस, ओके. मैक्सिमम क्वालिटी, ओके, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ओके. रिलेशन, मेक श्योर योर कंट्रीब्यूशन इज रेलिवेंट, ओके, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए. And then maximum of manner, avoid obscurity होता है confusing. Ambiguous is also confusing statement. Ambiguous statement ऐसी नहीं बोलनी चाहिए. Be brief and orderly. For example, I say today I'm going to take your test as soon as possible. ठीक है, अब as or you have to submit this assignment as soon as possible. अब मेरे as soon as possible का मतलब था इस वीक से पहले, और आपको लगा एज सुन एज पॉसिबल तो कभी भी दे सकते हैं. सो एम्बिगुअस चीजें नहीं बोलनी होती हैं, ओके, क्योंकि कन्वर्सेशन क्या है, सीरीज ऑफ एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन का, ओके. ये इसमें हम इंटरप्रेट करते हैं इंट्यूटिवली जो भी हमें समझ आ रहा है, जो भी हमारा रिलेशनशिप है, ओके, और फिर हम उस हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं मैसेज के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की, ओके. अब कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स. इट इज वेरी हॉट इन हियर, ओके. बी ने बोला आई ओपन द विंडो, ओके. We can infer the meaning of B's response. कैसे? The room is hot, probably because the windows are closed. अब हमने यहाँ पे मैसेज को क्या किया, इंटरप्रेट किया, क्योंकि विंडो क्लोज है तो इसीलिए बाहर से ठंडी हवा नहीं आ रही है, ओके, और फिर यहाँ पे गर्मी है. तो बी का रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे रेलिवेंट है प्लस इंटरप्रेटेबल है, हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ओके. नाउ व्हाट डू यू थिंक कैन बी रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी? यू हैव टू राइट आंसर. आपको कैसा लगता है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन दे आर शेयरिंग विद ईच अदर, क्योंकि उन्हें मैसेज समझ आते हैं, ओके. Now we also know the rules of conversation. कैसे? It depends on maxims. वो 4 maxims quality quantity वाली manner की behavior की हमने जो बात की उस पर डिपेंड करता है, ओके. आप जो है इन मैसेजेस में, इन इंफॉर्मेशन में sarcasm यूज कर सकते हो, sarcastic सी मैसेजेस, ओके. आप आयरनी डाल सकते हो, बोलना कुछ और चाहते हो बोल कुछ और, क्रिटिसिज्म डाल सकते हो और काफी सारे तरह के इन्फ्लुएंशियल मीनिंग डाल सकते हो, ओके. अब नाउ consider these examples. सबसे पहला is how's the food? There's plenty to fill your belly.
ओके, बी इज मैनिपुलेटिंग द मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन ताकि वो इम्प्लीकेट कर सके कि अदर क्वालिटी ऑफ फूड आर नॉट वर्थ मेंशनिंग। ओके, कि उसकी क्वालिटी बताना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो फिर उसने मैसेज ही चेंज कर दिया पूरा। ओके, हाउएवर एट द वर्क प्लेस द एम्फेसिस इज ऑन द क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे तो जो हो गया, लेकिन जब आप बिजनेस में होते हो, व्हेन यू आर ऑन योर फॉर्मल लेवल, आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच जो है मैक्सिम जो है जनरली अवॉइड किए जाते हैं। ओके, मैनिपुलेशन में, मैनिपुलेशन ऑफ मैक्सिम में ये जनरली अवॉइड किए जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, adjacency pair. Okay, it is one way in which meaning are communicated and interpreted in conversation, and it is through the use of what have been called the adjacency pairs. Okay, इसको आप adjacency pair बोलते हैं, adjacency. Okay, adjacency pairs जो है वो क्या है, utterances हैं जो दो successive producer हैं. Okay, and that second utterance is identified as related to the first and unexpectedly follow up होती रहती है information. Okay, the two form of a pair, the first utterance constitutes of a first part and the next utterance constitutes of a second pair part. First information से second तक पहुंच जाना relation frame करते करते. Okay, adjacency pair is described as a basic structural unit in the conversation, क्योंकि आप adjacent उसके हिसाब से ही फिर next चीजें बोलते हो. For example, greeting में hi, adjacency. Okay, compliment or acceptance, that's a nice dress, we'll say thank you, या फिर आप उसको compliment back करते हो. Okay, the basic rule of adjacency pair operation is that when a speaker produces a recognizable first part, he or she should stop talking. Okay, and the conversation partner should produce a recognition second pair. Now let's us talk about the next thing. Okay, you have to check your progress here and आप अपने answers check कर सकते हो. Okay, check your progress, रीड इट एंड डू इट, यू कैन पोस्ट द वीडियो. फिर आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करते हो कि कैसे आपकी कन्वर्सेशन की ओपनिंग्स रहती है और कैसे जो है क्लोजिंग्स रहती है. कन्वर्सेशन जो है सिंपली खत्म नहीं होती और एंड नहीं होती. ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग्स डिपेंड करती हैं. ओके, ओपनिंग जो है इवेंट स्पेसिफिक होती है और जो क्लोजिंग है दैट शुड बी मोर पोलाइट. प्लीज रीड इट. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, कैन आई हेल्प यू, आई वांट टू सी मिस्टर भाटनगर. Which Mr. Bhatnagar do you want to see? We have two Bhatnagars in the office. Okay, Mr. Mukul Bhatnagar. He's the director of finance. आपने बोला, do you have an appointment? I'm afraid I'm not. तो इसकी closing देखो. Will you tell him that I came to see him? I will certainly. Thank you. You're welcome. Okay, तो ऐसे उसने closing कर दी. Now next thing is topic development. आप अपने topic को कैसे develop करते हो? Okay, another dimension है ये conversation का. Okay, टॉपिक सेलेक्ट करना और फिर उसको डेवलप करना. ओके, कोहेरेंट जो कन्वर्सेशन है उसमें आप क्या करते हो, यू चूज योर टॉपिक ऑफ कंसर्न. ओके, फॉर एग्जांपल, इन अ मीटिंग, बिजनेस मीटिंग, मेंबर्स विल टेक टर्न टू स्पीक ओनली ऑन द आइटम्स ऑन द एजेंडा नोटिफाइड इन एडवांस. ओके, उसके एजेंडा पे बात करना पहले से ही. फ्रॉम अमंग दीज ओनली वन दैट आइटम विच इज बीइंग डिस्कस इज एट द मोमेंट. ओके, टॉपिक्स जो है डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, जो लैंग्वेज है बाइंग एंड सेलिंग की, कोड, ट्रायल, डॉक्टर, पेशेंट, कन्वर्सेशन, तो आप इसमें अपने टॉपिक को पहले ही डेवलप कर लेते हो. नेक्स्ट इज यू हैव टू चेक आउट योर प्रोग्रेस. आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन लिखनी है एक टीवी डीलर और एक कस्टमर के बीच में. जो कस्टमर है उसने अपना टीवी जो है लास्ट मंथ खरीदा है, बट अब उसके साउंड क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, सो यू हैव टू डेवलप द डायलॉग्स, पॉज द वीडियो एंड देन डू इट. अब टर्न टेकिंग. ओके, कन्वर्सेशन बाय डेफिनेशन वाज टू और मोर पीपल. ओके, टर्न टेकिंग का मतलब क्या है, रूल्स, अपनी अपनी बारी के लिए वेट करना. ओके, इट इज गवर्न बाय टर्न टेकिंग नॉट्स, कन्वेंशन दैट डिटरमाइंस हु टॉक्स व्हेन एंड कितने लंबे टाइम के लिए. ओके, वन हु टॉक्स टू मच एंड डज नॉट अलाउ टाइम फॉर अदर्स, वन हु कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू द कन्वर्सेशन अराउजेस नेगेटिव वैल्यूएशन. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत कम बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं बोलते ही नहीं है, तो उनके लिए नेगेटिव वैल्यूएशन होते हैं. रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्पीच इवेंट, जितना आपका टाइम है आप उतने हिसाब से बोलें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो क्लासरूम है उसमें टर्न टेकिंग कैसे होती है, स्टूडेंट जनरली रेज देयर हैंड टू टॉक. ओके, बिजनेस मीटिंग्स में भी दे हैव नोकिंग और सम रूल्स फॉर, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. देन इज द रिपेयर्स. रिपेयर्स का क्या मतलब होता है, मॉनिटर करना, इंश्योर करना कि आपका मैसेज जो है वो
कम्युनिकेट हो गया है और वो समझ आ चुका है। ओके, अगर अब दिस इन्वॉल्व्स करेक्शन व्हेनेवर इट इज सस्पेक्ट, अगर अब कुछ गलत हो गया है तो आप फिर उसको करेक्ट तरीके से बोलना इज रिपेयरमेंट। ओके, द टर्म रिपेयर रेफर्स टू एफर्ट्स बाय द स्पीकर और हियरर टू करेक्ट ट्रबल स्पॉट्स इन कन्वर्सेशन। ओके, कि नहीं सुनाई दिया बाय चांस, जैसे मैंने बोला हाय वी आर गोइंग टू टेक अ टेस्ट टुमारो, आपको नहीं सुना तो आप बोलेंगे सॉरी कुड यू प्लीज रिपीट योरसेल्फ, एंड आई से हाय आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट टुमारो। ओके, दैट इज रिपेयर, उसकी करेक्शन को पूरा समझना। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स। ओके, हिम्स जो है रिलीजियस गाने, it is the term speech event for activities that are generally governed by norms use of speech, hymns. Okay, रिलीजियस गाने एज स्पीच इवेंट्स कन्वर्सेशन कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद अदर टाइप्स ऑफ स्पीच, जैसे कि लेक्चर्स हो गए, डिस्कशंस हो गई, मीटिंग्स हो गई, डिबेट्स हो गई, ये सब। ओके, तो हम ये सब जो है इन्हें डिस्कस करते हैं, डिस्टिंग करते हैं। ओके, स्पीच इवेंट्स जो है जैसे कन्वर्सेशन एज शोन अबव ऑल्सो हैव आइडेंटिफाई रूल्स फॉर प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल्स एंड एंड। आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके प्रॉपर स्पीकिंग में, वॉयलेशन होंगी तो यू विल फ्राउन अप। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स आर ऑलरेडी सेड अबव, ये जो है इवेंट स्पीच स्पेसिफिक होती हैं। ओपनिंग कैसे होगी आपकी, क्लोजिंग कैसे होगी। फॉर एग्जांपल को काफी सारी स्पीच जो है एसेंशियल होती हैं, समन मेमो, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी ओपनिंग करेंगे, कैसे क्लोजिंग करेंगे। ओके, नाउ यू हैव टू रीड अप दिस। ओके, you have to read up this exercise, read it up and then we sum up. Okay, ये काफी सारे speech events के बारे में discussion दिया हुआ है. This is your reading exercise, you have to read it and understand it. So this is all about today's class. The class had been a little long, so that is why I have assigned you to read it so that you don't feel bored. Okay, so this is all about today's class. We are going to discuss then unit 2 of block 1 in the coming video. I hope you have understood the video. Thank you so much for your time and your attention. Have a nice day.